And on behalf of Graduate Skill One Embody, I wholeheartedly welcome all the participants who are here. And today we have a special guest with us, Professor Imran sir. And he has been in the industry for a long period of time. And it's been our pleasure that we have him today with us. Just to talk about a little bit about Graduate Skill One Embody. The idea or the mission and vision is to cultivate strong connections among graduates by providing platforms for networking, mentorship, and collaboration. To foster a connected and empowered community of graduates committed to lifelong learning, professional excellence, and positive societal impact. So, as a team, we work on various aspects such as professional development, community service, advocacy and support, lifelong learning, global connectivity, ethical leadership, celebrating achievements of students, innovation and entrepreneurship. And, we have created this platform so that we can bring the graduates from One Embody and those who are connected to One Embody in some or the other way, so that we can give a platform for the students and educators for a better learning outcome. So without taking much of your time, I wholeheartedly welcome Imran sir and request him to talk about In Pursuit of Time, which is indeed a need of the hour for us. So today we are going to see a lot more about time, and Imran sir would really explaining about how it is going to work and what are the things about it. When I got the gist of it, I was really surprised to know that there are 4 dimensions of time, and there are various types as well that we need to understand. And there is also thermodynamic arrow of time, the direction of time, and through which there is something called as cosmological arrow, which will help us to understand how to navigate the time better. So I request Imran sir to take it forward from here. Jazakallah. Assalamu alaikum. I'm very much thankful to the Graduates Guild and all the officials connected with it for giving me an opportunity to talk on this topic, which I have always been fascinated by. So here is about, I'll have to split this into about 8 subheadings under which I will just briefly describe how we have to define something. Unless we define something, it becomes very difficult to incorporate those things into our life. I'm very much fascinated by the time after reading certain books, where time is considered as something that doesn't allow everything to happen at once. If it allows, everyone will be born at the same time, everyone will grow at the same time, and will die at the same time. So God has created the time over a certain events, and we are going through an event, from one event to another event. So how we spend our days is, of course, how we spend our lives. And here is the most inspiring thing that I have been fascinated by. और एक और आयत जो है ज़रियत का है, और ये सूरह अंबिया है, जिसमें जो है बिग बैंग और एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में जिक्र किया गया है. तो इसको जब लेके हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी तहकीकात जो है कायनात के अंदर आगे आती है. So if you make a search on what actually is time, you will get a local time, that where you are, wherever you are. But in fact, if time is a dimension, if you message one of your friend, are you free for a coffee sometime, means it becomes very difficult. So many doors will open about what time, where to go, when to come. So likewise, if I say that if I am born at a time after the universe started after 18 billion kilometers in the past, it will be very confusing. So I have to be very precise with the time. Usually the dimensions we just ignore. These 2 dimensions things in a space are already fixed. Like for example, if I go to buy something like a packet of milk, if I forget it, I can go back again and bring it,
but the time that was there, the dimension of time that was there, I'll be just losing it. So that is why many physicists have classified this into 3 types of time. This is don't think that these are all very highly technical terms, something like that. ये एक्चुअली जो है ये आज के ज़माने में हमारे लिए बहुत बेसिक हो गया है. थर्मोडायनामिक्स मीन्स जो जितनी गर्मी से हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ को, उसको थर्मोडायनामिक्स कहते हैं. इसके बाद जो है साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किस तरह से जो है यूनिवर्स के साथ मूव होते हैं इसलिए. So the third time, it is also called as absolute time, is also called as the cosmological time when the universe began, and the time or epoch in which we are living. तो उसको जो है cosmological time जो है. ये तीनों टाइम जो है क्लासिफाइड हैं और इसकी बिना पर बहुत सारा रिसर्च हो चुका है. तो इसको लेकर जो है हमारे पास एक आउटकम निकलता है, उसको जो है बायोलॉजिकल टाइम क्लॉक होती है. ये जो डायग्राम है इसके लिए आपको सिर्फ इस जगह पे देखना होगा, यानी कि आई थिंक यू कैन सी दिस स्मॉल क्लॉक इज देयर. तो हमारे सेल में जो है एक जगह एक क्लॉक होता है जो हमें ये बताता है कि वक्त क्या हुआ है. घड़ी की भी जरूरत नहीं है, हम लोग जो है सुबह शाम वगैरह देख कर सकते हैं. और इसी तरह से हम लोग सेकेंड्स से लेते हैं मिनट्स और आवर्स एंड मंथ्स एंड इवन सेंचुरीज में वर्क करते हैं. न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में है वो सेकेंड्स में काम करते हैं, और हमारे थॉट्स, मेमोरी, इमोशंस पूरे जो है मिनट्स में काम करते हैं. और इसी तरह से हार्मोन्स जो है वो हमारे आवर्स में काम करते हैं. तो टाइम का बेसिस जो है पिछले 3 टाइमों से लेकर जो है हमारे पास चला आता है. तो इसमें जो है कल्चर का एक पार्ट भी जो है हमारे ब्रेन के हिस्से में जमा हुआ होता है. सिर्फ एक फ्रंट पोर्शन जो है हमारा खाली रहता है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जिसे कहते हैं, वो जो है हम लोग ट्रेनिंग के हिसाब से उसको चेंज करते हैं. तो ये बायोलॉजिकल टाइम में जो है सर्काडियन रिदम भी कहते हैं. It influences the important functions of the time. So if you can see the diagram there, you can see that we start with the days that we work here. Okay. So my main point will be at this particular point, secretion of melatonin begins 9 to 10 p.m. Here, this is very essential because the moment sun sets, the body understands that and produces a chemical which is very essential for all sleep and digestion process. This body is also tricked. Sometimes some of us, we wear cooling glasses in the morning. It's not advisable always, but if you spend too much time, you can wear glasses, because when we wear glasses, the body understands that the light has been cut off, so it starts the production of melatonin and goes into the mode of the sleep. So actually this rhythm is based on the sunset and sunrise. We consider one particular sunrise and sunset as one particular day, and based on that, all our hormones, all our things, they work, including the appetite and the temperature. So this I have already highlighted. Melatonin is a protein that keeps our clock genes in check and is influenced by that. So this is what we call it as an arrow of time. ये टाइम जो है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला आता है. तो इसको जो है सपोज इफ you wake up one morning and find that you are in a space, it will be very difficult to tell about the direction, whether it is north or up or down or south or west. You'll only see sky where you have the stars, and these stars will talk about the history from where they have come. They started with a big bang and we are passing through a particular epoch, but it will never tell you about the matter that is there. If I forget, so in the place here, I told you that if I forget milk, I can go and that. But tomorrow, what I am going to take, day after tomorrow, what I am going to take, I may not be able to. I'll have to go along with the arrow of time. इसको जो है एक important word, ये word भी बहुत जरूरी है. एंट्रोपी कहते हैं. एंट्रोपी के माने डिजार्डर होते हैं. ये डिजार्डर जो है इसकी एक और मिसाल है कि अगर ये कप हमारे हाथ से गिर जाए तो फूट जाता है. तो फूटे हुए कप को अगर आप फिर वापस डालें तो वो सारा नहीं होता. तो मतलब ये है कि जितने भी डिजार्डर होना है, तो वो डिजार्डर जो है इस यूनिवर्स में होते आ रहे हैं शुरू से. हर चीज जिसको भी आप छोड़ दें तो फौरन बिगड़ने पे तुली होती है. तो इस डायरेक्शन को
ये थर्मोडायनामिक और फॉरवर्ड एरो ऑफ टाइम कहते हैं। तो दूसरी बात जो है परसेप्शन, हम लोग टाइम किस तरह से परसीव करते हैं। तो इसके लिए ये मिसाल मेरे लिए बहुत अच्छी नजर आती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये एक स्टार है, एक स्टार है, एक स्टार से एक लाइट इस तरफ आती है तो इसको सीधे इस तरफ चले जाना चाहिए, मगर चूंकि सूरज यहाँ पर मौजूद है वो बहुत हेवी होता है, तो जो है ये लाइट को बेंड कर देता है। तो लाइट बेंड कर दे तो हम लोग जो है सूर्य स्टार जो है यहाँ से नजर आता है, एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है, मगर बेंडिंग की वजह से हम लोगों को यहाँ से नजर आता है। So it appears like coming from. So these are all the stars that are there in the universe and the sky, maybe some kind of perception, some kind of illusion, some kind of imagination, because we have not been able to reach a single star. But present day instruments, including the James Webb Telescope, they are being recorded, where they record the every star's growth and every star's explosion, every sunlight that is coming. And people in, and the perception, other perception is there. People in passive and active wait more perceive the same time in a different. ये सिर्फ 10 मिनट्स का होगा, मगर साइकिलिस्ट को जो है 5 मिनट, क्योंकि ये फास्ट जाता है, इसको 5 मिनट्स में नजर आता है, मगर हम लोगों को वेटिंग जो है, अगर इस वेटिंग में है तो हम लोग जो है उसको 15 मिनट्स में देखते हैं। तो इसको जो है टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, ऑड बॉल इफेक्ट कहते हैं। ऑड बॉल इफेक्ट ये लोग इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम लोगों को ऑलरेडी कुछ 25 का पता है तो उस चीज़ को सीखने में नहीं होते। इसे जो है एक काइंड ऑफ स्टिमुली बोलते हैं, यानी कि हम लोगों को कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, इंस्पिरेशन अगर मिल गया तो हम लोग सीखते हैं, तो उस वक्त हम लोगों को टाइम जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसी तरह से पावर ऑफ अटेंशन भी क्लासिफाई किया जाता है। इसमें हमेशा ये लिखा होता है कि लोग फर्स्ट 40 मिनट्स पूरी ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद जो है उनका अटेंशन थोड़ा डिलीट होता है, वो दे नीड ए ब्रेक। तो लास्ट वन जो है वो एज है, एज के हिसाब से हर एक क्लियर होता है। तो इसी परसेप्शन के हिसाब से ये एक बेहतरीन एक छोटा सा क्लिप है, एक पथरी की पिक्चर से हमारे पास कौन सी है। तो द अमाउंट ऑफ टाइम टेक्स टू रीच द ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो इतना लेट भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो शख्स जिसकी पिक्चर हमारे पास रीच हो रही है वो बूढ़े भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर कुछ स्टार है, तो स्टार यहाँ पे कुछ है, तो इतने दूर पे है कि रोशनी आते 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 जो है हम लोगों को मिलियंस ऑफ ईयर्स आता है। तो उस वक्त तक स्टार जो है जलकर खाक होकर जो है अगर हम लोगों को Alin sir, can you mute Redmi, please? Sorry. बारिश का खूब हो जाता है। बुरा भी हो जाता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल सनराइज अगर 6:30 AM होता है तो सूरज की पहली शुआ जो है हमारे तक पहुंचने में 6:38 AM हो जाता है। तो इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स फॉर ऑल द डिस्टेंस फॉर द सन टू ट्रैवल। सो 8 मिनट्स के फासले पर सूरज है। तो इसी तरह से कई सितारे जो है कितने की मिनट्स पर हैं, जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो ये स्टिल जो है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए कंफ्यूजन है। तो इनके लिए हिस्ट्री जो है ये बिग बैंग है, इसका एक सॉलिड प्रूफ यह है कि हम लोगों को हर तरफ जो है कॉस्मिक रेडिएशंस नजर आते हैं। कॉस्मिक रेडिएशंस जो है हर जगह मौजूद हैं। तो कॉस्मिक रेडिएशन इज अ प्रूफ दैट द यूनिवर्स स्टार्टेड विद द बिग बैंग। सो आई हैव अ स्मॉल क्लिप ऑफ व्हाट दिस बिग बैंग इज, and the universe started with a very big bang and the expansion take place. In the expansion you can see a lot of galaxies. So here each galaxy, there are about 400 million galaxies here, and all these galaxies over a particular time ये मैटर के साथ टाइम भी पैदा हो। तो यही बात जो है इसमें ये कहते हैं। तो अगर suppose if we have this big bang, after that we reached some point on a particular planet or something like that, then we will classify them based on their process only. Stars जो है, सन ये भी स्टार है, कूल हो गया उस चीज को प्लैनेट कहते हैं। तो अर्थ जो है प्लैनेट है और उसे जो है पास्ट और फ्यूचर को रखकर ही डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसा कि बचपना और जो है जवानी और इस तरह बुढ़ापे या मौत आता है, उस वो एक ये लोग जो है उसे एंट्रोपी के नाम से ये खिताब करते हैं, बिकॉज देर इज ऑलवेज डिसऑर्डर। तो हम लोगों को इसी डिसऑर्डर से दूर रहने के लिए जो है कुछ ना कुछ करना चाहता है। इसी तरह से मेजरमेंट है।
तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट दैट टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स. सेकंड इज डिफाइंड एज द ये सीशियम एटम जो है था. तो ये हिस्ट्री यानी कि जो ये 4.6 जो है 4.6 बिलियन ईयर्स का जो है थोड़ा बहुत प्रूफ है ये लोगों के पास रेडियो कार्बन डेटिंग से. तो अगर 4.6 बिलियन ईयर्स को आप जो है 1 आवर में कंप्रेस करेंगे तो आपको फर्स्ट बैक्टीरिया कितने टाइम में आया, फर्स्ट फाजिल कब आया, ओल्डेस्ट रॉक कब आया, अर्थ क्रस्ट कब फॉर्म हुआ, फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर कब आया, वो सब आपको जो है था. यानी कि बहुत ज़मीन बहुत पुरानी है, बल्कि इसमें जो है क्लासीफाई किया जाना. तो इसी तरह से जो है क्लासिफिकेशन जो है हम लोग 60 सेकेंड्स टू 1 मिनट, 60 मिनट्स 1 आवर, 24 आवर्स को 1 डे कहते हैं. तो इसे जो है लीनियर टाइम कहते हैं. तो ये लीनियर टाइम का एक फ़ायदा है कि हमारा जो ग्लोब है, ये ग्लोब को जो है ये लोग कई हिस्सों में क्लासीफाई कर देते हैं, डिफरेंट मीटर्स मिनट्स में क्लासीफाई कर देते हैं. तो उसको टाइम जोन में भी क्लासीफाई करते हैं, और जो है टाइम जोन और यानी कि XYZ कोऑर्डिनेट्स में भी क्लासीफाई करते हैं. XYZ यानी कि हम लोग GPS कहते हैं. वानिम्बड़ी जो है आपको 78 डिग्री और कुछ 18 डिग्री इसमें आता है. तो यही तरह की इसी बेसिस पे जो है वो क्लासीफाई करते हैं. So what is time? So I'll just go to the next slide. Here it is. Theory. इसमें जो है understanding of time is based on Einstein's theory of relativity, which says that time runs differently depending on relative motion. तो इसमें एक नजर ना आने वाली एक चीज ऐसी है कि सपोज इफ यू टेक द सन, द सराउंडिंग द सन यू गॉट समथिंग व्हिच यू कॉल्ड एज अ वेब. ये वेब में जो है ये कहा जाता है कि आपको हम लोगों को इनविजिबल है. तो इसी इनविजिबल वेब को जो है ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है. ये इनविजिबल वेब जो है, अगर इसको आप एक नेट के माने सपोज कर लें, तो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा. तो यहाँ पे जो है ये नेट का जो है आप इसे जहन में रखें. ये वीडियो का जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको आई जस्ट एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट एक्चुअली इट इज. नाउ हियर इज द कोऑर्डिनेट्स जो है XYZ हमें जहाँ पर भी मौजूद हैं वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के नाम से जानते हैं. तो ये नेट है, इसलिए सीरियस लीजिए कि अगर नेट पर आप कोई वजन चीज़ डालेंगे तो बेंड होता है. तो इस बेंडिंग की वजह से यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा कर्व महसूस होता है. तो उस कर्व में जो है ये बाल यानी कि छोटा अर्थ. तो इसकी एक और मिसाल मैं आपको यहाँ पे ये दूंगा. सपोज ये इफ यू हैव ए टैंक हियर, द टैंक इज फिल ऑफ वाटर फिल अप कर देते हैं. तो इसमें यहाँ पे एक छोटा सा होल डालते हैं तो पानी यहाँ से लीक होता है. तो ऊपर से अगर आप देखें तो पानी जो है यहाँ से लीक होने एक डायरेक्शन में लीक होते होते जो है एक सर्कुलर डायरेक्शन में फिरने लगता है. तो मतलब यह हुआ कि अगर कोई फोर्स नीचे की ओर जा रहा है तो ये गोल फिरता रहता है. तो इसी तरह से हमारा सन जो है इतना वजन है कि ये फैब्रिक ऑफ टाइम एंड स्पेस को पुश करता है, तो अर्थ जो है उसके इस पर रोटेट होती है. तो ये बहुत ही प्रूवन थ्योरी है, और इसको जो है हम लोग XYZ कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे एक बेहतरीन अच्छे अंदाज में समझाया जा रहा है. It is XYZ coordinates with time. We can see that it is considered as not much scientific. ज़्यादा साइंटिफिक भी नहीं है. इसकी एक मिसाल यह है कि अगर आप किसी को बुलाएं तो X डायरेक्शन ये लाइन है, Y डायरेक्शन ये है और Z डायरेक्शन ये है. तो ये स्ट्रीट और 6th फ्लोर में आप कौन से टाइम में मौजूद हैं, ये जो है ये 4th डायमेंशन कहता है. तो ये 3 डायमेंशन जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का होता है. तो इसी तरह से स्पेस में क्लासीफाई करने से इसका हम लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं कि एक क्लासिफिकेशन जो है XYZ अगर स्पेस में डालें तो आपको जो है एक टाइम एक डायरेक्शन में जाता है. ये टाइम के रिलेटेड जो है ये XYZ एक्सिस में जो है जो सेंटर में सन रहता है, और जो कि ये देखिए तो ये सन के वजह से बेंड होता है तो अर्थ राउंड करता है. तो एक्चुअली रोटेशन ऑफ द अर्थ इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द सन. तो यहाँ पे भी यही सिलत है. यहाँ पे टाइम डायरेक्शन में कुछ गैलेक्सीज आपको नजर आते हैं. आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे जो है मीटर्स एंड मिनट्स कहते हैं. तो मीटर्स एंड मिनट्स जो है
अर्थ में हम लोग जो, मैं अभी ने कहा था कि वानम्बडी जो है 78 डिग्रीज और 18 लैटिट्यूड्स कुछ होता है ना, तो ये 1 मिनट जो है इसमें इसकी जो है 60 मिनट्स का 1 डिग्री वैसे क्लासीफाई करते हैं। तो ये कैसा होता है, बल्कि इस छोटे से क्लिप में आप देखें, यहाँ पे जो है ये सिर्फ स्पेस है और स्पेस और टाइम ये है। अगर सिर्फ 2 डायमेंशन हो तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये आपको ये होगा, इसमें आप जिगजैग जाएं या कर्व्ड जाएं तो आपको जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। जबकि स्पेस टाइम अगर आपको अच्छी तरह से अपना लें तो इसमें जो है एक सर्कुलर पाथ बहुत है। इसका एक फ़ायदा बहुत बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये एक न्यू दिल्ली टू शिकागो फ्लाइट है। न्यू दिल्ली टू शिकागो फ्लाइट जो है ये तकरीबन 18 आवर्स जाती है। तो ये फ्लाइट जो है आपको लैंगिट्यूड्स पे देखें तो स्ट्रेट पाथ आपको मैप में मिलेगा, मगर स्ट्रेट पाथ जाने से जो है आपको एक तकरीबन 40% आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है। उसके बदले में जो है ये लोग ऊपर जाकर कर्व नॉर्थ पोल वगैरह कर करके ग्रीनलैंड क्रॉस करके ऐसे जाते हैं। तो फर्स्ट में जो है समझ में नहीं आ गया कि स्ट्रेट लाइन में ये क्यों नहीं जाते, क्यों ये जो है कर्व्ड पाथ नहीं था। वाई दे ट्रैवल इन स्ट्रेट, वाई डू नॉट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन फॉर सच ए लॉन्ग डिस्टेंस। सर्कुलर जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें स्ट्रेट लाइन जो है आपको लॉन्ग होता है और जो कर्व्ड पाथ होता है वो शॉर्ट होता है। तो इसी वजह से जो है ये टाइम डायमेंशन से क्लासिफिकेशन की वजह से ये 40% आपको टाइम सेव होता है। न सिर्फ 40% से बट 70% फ्यूल भी इसमें सेव होता है, इसलिए कि इतना ऊपर जाने से जो है आपको एयर रेसिस्टेंस वगैरह कम हो जाता है। तो एयर रेसिस्टेंस कम हुआ था, एरोप्लेन्स विच फ्लाई एट द स्पीड ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली पर आवर, तो बहुत आसानी से कवर कर लेती है। तो इसके बाद जो है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो है आप हमारे ऊपर 400 किलोमीटर अबोव द अर्थ है, फिरते रहता है। तो इसमें जो है अब फिल वक्त जो है 6 साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम रहती है। तो इसका एक स्पीड में बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स यू विल सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पासिंग वेरी फास्ट। द स्पीड ऑफ दिस इज अबाउट 27,600 किलोमीटर्स पर आवर, and this is what it would look like if you are watching from ground to the earth. फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स में बहुत फास्ट जाएगा, आपको देखना भी देखना मतलब मिल सकता है या नहीं पता नहीं। तो इसके बाद जो है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, यहाँ पास हुआ अभी हो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरस्टेशनल स्पेस स्टेशन ये कितना स्पीड जाता है ये होता है। हाउ इट लुक दिस लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेस, ये बहुत स्पीड जा रहा है। तो इसमें स्पीड जाने का ये बताने का मकसद ये था कि इसमें जो है ये हमारा एक दिन जो है, हमारा एक दिन 24 आवर्स जो होता है, ये लोग जो है 16 राउंड मारते हैं इसमें, अर्थ के 16 राउंड्स मारते हैं। यानी कि वी सी वन सनसेट वन सनराइज। दिस स्टार्ट ये 24 आवर्स में हम लोग जो है वन सनसेट कितना ही रहा, राइट। ये सनसेट और एक सनराइज, सनसेट और एक सनराइज जो हम लोग 24 आवर्स होते हैं। तो ये लोग जैसा वन ऑफ द साइंटिस्ट है जो वहाँ पर वर्क किया था, तो ये एक दिन को 16 सनसेट और 16 सनराइज देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो है सॉरी सनराइज और सनसेट देखते हैं। तो हमारे ये दिन में जो है इनको 16 दिन हो जाते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन भी उठा लें तो हमारे 2 दिन में जो है इनको 1 महीना गुजर जाता है। तो इस तरह से जो है ये दोनों ट्विंस हैं, मार्क के लिए और स्कॉट के लिए दोनों ट्विंस हैं। तो इसमें ये शख्स ज़मीन पर रहा तो ये ऊपर गया था, तो ये 365 डेज वहाँ पे स्पेंड किया हमारे स्कॉट के लिए। सो ये स्पेंड 365 डेज है। तो 365 डेज में इसका एज जो है कम हो गया बाई इवन 20 मिनट्स और इवन 2 मिनट्स एज कम हो गया। दोनों ट्विंस हैं, मगर ये ज़मीन पर रह गया और ये ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि
हेवियर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ज़मीन है, इसके करीब जितने भी लोग रहते हैं उनका एज जो है थोड़ा ज़्यादा आता है। जो लोग ज़मीन छोड़कर चले जाते हैं उनका एज में रिडक्शन आता है। इसी तरह से जो है ये दोनों के ट्विंस में टेस्ट किया गया था। तो इसी का एक सिंपल एग्जांपल भी है। जो लोग पहाड़ में जाके बसते हैं वो लोग जो है अर्थ का सेंटर से थोड़ी दूर जाके रहते हैं, तो वो थोड़ा स्लो एज होते हैं, और जो लोग अर्थ से करीब होते हैं वो ज़्यादा फास्टर एज होते हैं। तो ये दोनों टीम्स में आपको जो है इन्हें थोड़ा एज लगता है और ये थोड़ा यंगर लग रहा है, इसलिए कि इसने 365 डेज स्पेंड किया। तो हमारा हर एक दिन को जो है इसने 16 सनसेट और सनराइज देखा, इतना स्पीड करता है। तो इट रोटेट्स इन about 16 revolutions per night. So this is the concept that they studied for the time to spend how much time. And the second and one of the most important thing is about the frame in which we rotate. Earth जो है ऊपर से देखे तो अलग है, स्पेस में देखे तो अलग रोटेशन होती है, मगर एक्चुअल जो है ये थोड़ा टिल्ट होती है, टिल्ट होकर रोटेट होता है। सो आई थिंक we all know this tilt angle is about 23.5 degrees. तो ये टिल्ट के भी जो है इसमें बहुत सारे असर होते हैं। तो ये रोटेशन क्या होता है आपके सामने नेगलेक्ट सेलेक्ट करते हैं। सो हियर इट इज। सो एक्सिस में रोटेट होने से टिल्ट जो होता है वो 23.5 डिग्रीज होता है। इसकी वजह से मौसम पैदा होते हैं, अगर नहीं तो ऑल दी 365 days will be only 1 year. So you can see that one part is always tilted away. तो इसका मतलब ये होता कि साल में चार मरतबा, यानी कि 21 जून, उसके बाद 22 सितंबर, अभी 2-3 दिन में होने वाला है सितंबर, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद है मार्च, 21, 21, 22 दिसंबर और 21 मार्च। ये सारे टाइम्स में जो है अर्थ जो है थोड़ा क्लोज हो जाता है, इसमें अर्थ क्लोज आता है। ये 4 दिन जो है 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च जो है अर्थ के करीब आ जाती है, थोड़ा दूर चले जाता है, फिर करीब आती है तो दूर चले जाता है। तो इस वजह से जो है टाइमिंग्स में बहुत अफेक्ट आता है। यानी कि हम देखेंगे कि डेज आर वेरी लॉन्गर इन समर एंड days are very shorter in the winter. The reason is not because we are very closer, but because of the tilt there. तो ये एक्सिस में टिल्ट होने का भी ये भी बहुत बड़ा जो है एक अजीब ही तकलीफ है। तो इन सब को देखकर जो है मेरे जहन में ये चीज़ आई कि ये सब चीज़ों को लेकर मैनेजमेंट, हाउ वी हैव टू मैनेज ऑल दिस टाइम्स, ऑल दिस थिंग्स इनटू one particular aspect. So I just came across this particular video. In 1998, they launched one particular spacecraft to the Mars called as the Curiosity. The Curiosity rover was equipped with many strong equipments. बहुत सारे equipments थे उसमें। तो उसमें एक सबसे बहुत बड़ा equipment जो है कैमरा का था, जो कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का कैमरा लेकर वो पिक्चर्स भेजना था। तो हर एक कंप्यूटर में चूंकि जो है टाइमिंग जो है हर एक कंप्यूटर में जो है शेड्यूलर होता है। शेड्यूलर के हिसाब से जो है प्रियोरिटी बेस्ड जो भी प्रियोरिटी है उसको पहले देता। तो the Curiosity rover was taking very beautiful pictures of the Mars, but was not able to send because according to the scheduler, it was not allowing something greater than 10 megabytes. 10 MB से पिक्चर से भी जो भी आ गया वो पर, तो उसके बदले में दूसरा डाटा जो है 2 MB 3 MB में जो भी आ रहा था, फॉर एग्जांपल वाटर सेंसर था, ऑक्सीजन सेंसर था, सॉइल सेंसर था, वो सब डाटा आ रहा था, पिक्चर एक ही नहीं आ रहा था। They were not receiving the pictures. The reason is that the computer was so programmed, the scheduler was so programmed that it was not giving any priority to the priority to the high size. So one of the thing that I want to tell you is we have to give priority to this. So this was that was there. So what they did later was they transmitted some software and they debugged the software, wrote it there, and changed the priority from transmitting the picture highest up to highest priority. Therefore, it started working again. So likewise, it is said that this is an experiment that was written that was done by one of the famous author of about time, Carl Rowell. He wrote that we often check for the inbox
in the inbox, if we check, we classify certain mails as very important, and something as secondary and something as social. What actually happens is he is able to prove that if we classify, we actually spend more time into that, double the time, in fact, when we just try to classify them. So rather than classification, his suggestion was that we check all the mail, reply, respond, or take notice at that time, then and there, because when you have 3 sections and you try to classify these 3 into different categories, it takes 3 times more. तो ये एक बेहतरीन और एक मिसाल थी, तो जिसका मैं एनिमेशन में आपको बताया। तो इसी तरह के कैलकुलेशन भी जो है, ह्यूमन बींग्स एवरेज जो है 75 ईयर्स अगर जीता है, तो उसमें जो है मैक्सिमम कितना 34% ऑफ द टाइम ही स्लीप्स, यानी कि 25 ईयर्स टू 27 ईयर्स सोता रहता है इंसान, यानी कि 8 hours of sleep is necessary. And if you consider this, 8 hours happens to be 1/3 of a day. So 1/3 of a day we keep sleeping, and at the end of the time we try to sleep also. It includes we try to sleep also. Then you can see some of them spend more time. The percentage is 14 is for the TV and media. We spend more time. Nowadays it has become increased. This is a work that was reported in a UK's paper. I have got the reference there. Here is the work, which is this is the work that is there. So here I have the data, and for eating and all those things we spend about 5 years or something, 4 years like that, and in bathroom and waiting, so that there was this kind of classification. So if we classify how much time we sleep, how much time we spend on TV media, and how much time we actually work, we will be able to come across something which we will call it as the prime time. So we sleep more, and here is the 8+8+8 rule, where we can distribute our 24 hours into good balance, and 8 hours of hard work, 8 hours of good sleep, and 8 hours should be spent on 3 yes, which is like family, friends, and faith, health, hygiene, and hobbies, soul service, and smile. Of course, this even everyone can just keep in that. And here is another thing how to, but I just like this eat that frog concept here. Eat that frog, is a very famous concept there. It just says that do the hardest thing when the first instance you have to classify something for as per your work. You have to classify which is very hard, and doing that hard work is the first, should be the first priority. For that they call it as the eat the frog. And there is one more thing that here is do the hard things when they are easy. It becomes a order of the life when they are easy. So how do they become easy? Once we develop passion, we should not consider it as a work at all. Whatever work we have, we just have to keep on doing that. That will be considered as the passion. So here are some ending points where we can say that it's okay to say no. One of the thing that it teaches you to be very bold, and then we have to embrace digital tools. I often see that many persons do not take up the updated things. Even they don't try at all. Before trying, they just say it becomes very difficult. And then we have to do some multitask. And our generation has come across all this. We have seen a generation where there was no mobile phone, and we are going through this. And therefore, multitasking becomes very difficult. We have to set up realistic deadlines, and then we have to maintain a to-do list. Usually we do not do it. I write this kind of thing, and then we have to complete high priority tasks. That is called as the eat a frog technique. And lastly, last but one, eliminate disturbances. Like for example, turn off the push notifications on phone, turn on the do not disturb mode on your phone, avoid the temptation to read. And then here is the last thing. If you do all those things, taking a break has got some meaning. And here is some of the references that I got. The Order of Time by Brief History of Time. So here about the do the frog, I have to tell one more thing, that we have become habitual of putting the white lights in the night. Actually, yellow light, is very essential. Yellow light has a frequency that tells our brain that it has become night.
But what we often do is we put white light and brighten up everything and treat nights as something like a day and start working. Therefore, it rather goes a kind of stress into the body. I think I showed you how the stresses work in seconds and minutes. And for a stress, for a kind of not sleeping is a kind of stress. If you don't sleep for 1 month, it doesn't matter. If you don't sleep for about 1 year or 2 years, it has got some other sequences. So in a recent visit to Japan, I saw that after 8 p.m., there were no white lights at all. And they were having very dim light. Even in the streets, there was no light at all. Because if you ask for the light, they ask back, what do you do? What you have to do in the night? You have to go for sleep. Don't convert all your nights into the days by putting the white light. So it was advisable that yellow light is very good. So I have taken references from there. So I'll end up my session there and finish up with my thanks to Khalid Saab, Rafiq Saab, and Graduate Guild of November, and thank you to Management Explanatory. So I am now open to any questions. If you are not understood, I can just read back again and explain to you. Jazakallah khair, Imran sir, for the wonderful presentation. Mashallah, it was a great learning experience for me as well. I did not understand these concepts जब मैं स्कूल में था और जब आकर फिजिक्स के क्लासेस में भी ये डिस्कशन होता था तो वो कुछ सर के ऊपर जाता था. But alhamdulillah, within the short period of time, you were able to explain it comprehensively. So we are thankful to you for the presentation. The floor is now open for questions. अगर किसी को कुछ भी अगर क्वेश्चंस हैं तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. जज़ाकल्लाह. Assalamualaikum. Thank you, Imran. This is Saif. And my first question, I think two things. Like one, you were talking about how the age, when you move away from the heavy objects, so kam ho jata hai. I think the concept is explained well in that movie, Interstellar. The Yes. movie apni samajh mein nahi aayi. Aaj thoda samajh mein aayi. That's what I can say. And thank you for that. That's not a question. The other thing is like, jab bhi hum log flight mein jate hain, always I used to see that. I used to travel Singapore to LA. So they go towards the North Pole ऐसे जाते थे. I always thought क्यों इतना why don't they go straight? मेरा explanation है, without understanding what I was thinking is बीच दरिया में कहीं plane गिर गई तो rescue operations के लिए मुश्किल हो गया. I thought they were going close to the land area. That's what my explanation. But now I understood. In reality, it saves a lot of time. Otherwise, it will take 40% extra. Thank you for explaining that. So any other? We have one question in the chat box from Adil. Can you suggest how a person can shift from a night person to a morning person? What is the question? Can you suggest how a person can shift from a night person to a morning person? How ये IT वालों का सवाल है. कैसे ये कैसे आप भी देख सकते हैं चैट में, आप भी देख सकते हैं इमरान सर. चैट बहुत नजर नहीं. Okay, okay, ठीक है. Can you suggest I mean, how those a who- person? वो I think. Yeah, sorry. नहीं दिख रहा है ना. अच्छा यहाँ पे है. Right, okay. Yeah, yes, sir. Can you suggest how a person can shift from a night person to morning person? Yeah, it's बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है. अगर ये नाइट ड्यूटीज के लिए जो है थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसे जो है एक्चुअली परसेंटेज के हिसाब से आप क्लास है. 50% of the time you can I think it is about night duty and day duty. तो नाइट ड्यूटी अगर है तो अनअवॉइडेबल है. बहुत सारे लोग कैसे नाइट ड्यूटी वो लोग क्या करते हैं कि 50% ऑफ द टाइम जो है उन्हें ऑफ लेते हैं. फॉर एग्जांपल पायलट्स वगैरह जो है 50% उनको जो है नाइट में अगर है टाइम बेसिस में 50% जो है वो डे में काम करते हैं. हम लोग शिफ्ट करने के लिए जो है जब से नाइट शुरू होता है तब से जो है मेलेटोनिन प्रोड्यूस होता है. हम लोग उसे अवॉइड करके रात में जग के जो है एक्टिव बना लेते हैं पार्ट को. तो सोना बहुत मुश्किल आता है. शुरू में कुछ नहीं मालूम होता. जाने सेहत पर बहुत असर पड़ता है. येलो लाइट इसीलिए मैं अभी यहाँ पे येलो लाइट ही लगाया. तो आई हैव येलो लाइट हियर व्हेन आई सिट अप टू 10 AM or 10 PM or something like that. I give an impression to my mind that इसी तरह से स्क्रीन भी जो है स्क्रीन में भी आपको ऑप्शन आता है. येलो स्क्रीन जो है आप इसको इनेबल कर ले सकते हैं. 8 PM to 8 AM येलो स्क्रीन करना.
तो ब्रेन बहुत रीड करता है, इतना रीड करता है, इतना इंटेलिजेंट है ब्रेन क्या जो है, हम लोग उसे ठगा ही नहीं सकते. तो यू कैन कन्वर्ट सम नाइटली एटमॉस्फेयर एंड यू कैन चेंज द हैबिट्स, certain habits. I think Thank that you, is sir. more about management. These are the love. हाँ हेलो. Yes, sir. Please. Yeah. Yes. वो जो ये टाइम है ना, पहाड़ में कम गुजरता है बोलते हैं. हाँ, पहाड़ में कम गुजरता है. हाँ कम गुजरता है. तो हाँ. बुर्ज खलीफा में भी कम गुजरता है क्या? ऊपर चले गए था. The more It's you also a escape, longer, no? It is a very long building, नहीं वो height जो building. वो still वो it's a very good question, but still it is a paradox ही बोलते हैं इसको. अच्छा अच्छा. पैराडॉक्स बोलते हैं. आई थिंक ये मैं नो दैट. ज्यादा ये ऊपर जाने का मतलब ये है कि कोर यानी कि एर्थ का कोर जो है बहुत हेवी होता है, ग्रेविटेशनली इट इज वेरी हेवी. तो उससे दूर जितना ग्रेविटेशनल पुल से जितना दूर जाएंगे उतना जो है आपको टाइम स्लो होगा, तो इस हिसाब से एज कम होगा बोलते हैं. एक्चुअली देखें तो बुर्ज खलीफा से जो है उतना ग्रेविटी से स्पीड नहीं जाता है. माउंटेन बोले तो येलगिरी वगैरह से नहीं है, बट हाई माउंटेन, हाई लेवल यानी कि माउंट एवरेस्ट वैसा आ गया लेवल में ऐसे गुजारा तो थोड़ा बहुत 2 मिनट 3 मिनट का फर्क आएगा बस, इससे ज्यादा तो नहीं. अब क्या भी है ना, ओल्ड एज में कुछ फर्क नहीं आएगा इफ यू लिव इन बुर्ज खलीफा और समवेयर एल्स. हाँ, एजिंग जो है इस ग्रेविटेशनल एजिंग में. पुल बोलते हैं एजिंग. अच्छा अच्छा अच्छा. चेहरे में झुर्रियाँ आ जाना भी जो है, हमारा स्किन जो है कॉन्स्टेंटली अर्थ से लड़ते रहता है, अर्थ की ग्रेविटी के पुल से, इसी तरह से झुर्रियाँ आ जाती हैं. तो इसमें एक डिसएडवांटेज भी है कि जब स्कॉट केली स्पेस में चला गया तो स्पेस में जो है इसको बॉडी जो है वेटलेस हो गया. तो बॉडी का मैकेनिज्म देखो, बॉडी का मैकेनिज्म वो वेट जरूरत नहीं है, बल्कि वो जो है बोन्स को डिजॉल्व करने लग गया बॉडी. द बॉडी स्टार्टेड टू erode or dissolve calcium because weight of the human body was no longer needed there. So weight is needed only on earth. So when there is no gravity, mass is not at all needed. इतना इंटेलिजेंट है बॉडी. तो वो हिसाब से ग्रेविटेशनल पुल जहाँ होगा वहाँ पे जो है आपको टाइम स्लो जाएगा. ग्रेविटेशनल पुल जहाँ पे नहीं है, आप एस्केप हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो आपको टाइम फास्ट जाएगा, तो यू वोंट एज. शुक्रिया. Thank you, sir. Yeah. Any more questions from the participants? Thank you very much. Thank you, Brian, sir, for your wonderful presentation. Khalisa, is it good to wrap up the meeting? Yes, please. Yes. Jazakallah khair, Imran sir. On behalf of Graduate Skills Panibadi, we wholeheartedly thank you for being a part of the session today, and we look forward to hear from you more in the upcoming sessions as well. So, जो भी participants हैं उनका शुक्रिया कि आप लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया. And if you know any resource person who can be a part of these Zoom sessions, please let us know so that we can reach out to them and have the sessions arranged. Jazakallah khair. Subhanallah. I'm going to end the meeting now. Sorry.